Okay, so Prajwal, first of all, just give you a brief intro. Sir, I am Prajwal Srivastava. I belong to Varanasi, Uttar Pradesh. I did my graduation BTech in Mechanical Engineering from IIT Roorkee. Currently, I am preparing for government technical exams. So Prajwal, let's ask some questions from the fluid machine department. What do you mean by meta center? Sir, meta center is a point about which a floating body will oscillate. Means we can say this point is obtained after the intersection of, means if we displace a floating body by some angle, so the angle of the normal axis which joins buoyancy force and gravity, point, center of buoyancy and center of gravity, and the line of action of the vertical line from the center of buoyancy. This where these intersect, that's the meta center, and it is the point of about which a floating body will oscillate, sir. Okay, what do you mean by rolling? Difference between the rolling and pitching? So rolling and pitching, sir. So 1 second, sir. So rolling is the small oscillations about the longitudinal axis, while pitching is the oscillations about the axis which is means perpendicular to the longitudinal axis, but in the plane, means in its plane. Okay. What is the role of a metacentric height in the case of a passenger ship and a cargo ship? Sir, in passenger ship, we means so 1 minute, sir. Let me 1 minute for thinking. Okay. तो पैसेंजर शिप में हम लोग क्या कहते हैं, जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब उतनी ज्यादा हाइट नहीं रखते हैं ताकि क्या कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन थोड़ा ज्यादा रहे. वाइल इन केस ऑफ कार्गो शिप्स और वॉर शिप्स वी कैन से हम मेटासेंट्रिक हाइट को बहुत ज्यादा रखते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी बनी रहे. ये सर मेन डिफरेंस होता है. ओके, सो हाउ कैन वी चेंज द हाइट? अगर सेम शिप है, मैं अगर उसे अगर चाहता हूँ कि मेटासेंट्रिक हाइट मेरी बढ़े या घटे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? व्हाट विल वी डू? मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाना या घटाना है सर. कैसे करेंगे सर? सर बेसिकली yes sir, we can basically the metacentric height formula is I by V emerged minus BG. So we can means V emerged को चेंज करेंगे सर हम लोग बेसिकली, जो मतलब I emerged कैसे चेंज होगा? वो तो वाटर की डेंसिटी सेम रहेगी. यस सर, यस सर, यस ये वाटर है मेरा, है ना सर. तो सर बेसिकली तभी सॉरी सर आइडिया नहीं हो रहा सर, थोड़ा कंफ्यूजन. व्हाट डू यू मीन बाय साइफन? साइफन सर बेसिकली सर एक सिस्टम, सॉरी सर आइडिया नहीं सर उसका, तो अच्छे से याद नहीं. कैविटेशन. So cavitation is a phenomena in which so basically अगर कहीं का प्रेशर, किसी मतलब सिस्टम का प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो वहां पे बबल्स फॉर्मेशन होने लगता है, उसको हम कैविटेशन फिनोमिना कहते हैं सर. यही होता. How it is going to be occur in the case of a pump? Sir, in case of pump at the inlet of impeller, if the pressure decreases below the vapor pressure, so cavitation phenomena will occur, sir. At the inlet of impeller, sir, it occurs. If the pressure decreases below vapor pressure, sir. Okay. अगर सक्शन हाइट बहुत ज्यादा कर दी तब सर उस केस में What do you mean by pitot static tube? Sir, pitot static tube is a flow measurement. It is a device which is used to measure the velocity of the flow. It basically employs the principle of converting the kinetic energy into pressure energy, through which the rays of liquid is obtained. So this is the phenomena of let us assume I am just going to take a 1 manometer, U2 manometer, which is just going to be installed in a one horizontal pipe, and the same pipe is going to be a vertical. And I'm also just install the one U2 manometer. Okay. So the difference between the 2 points is, let us assume, H and H dash. Okay. So what is the actual difference came into the manometer readings? पहले सर एक हॉरिजॉन्टल पाइप है सर, और दूसरे केस में वर्टिकल है. वर्टिकल, सेम वर्टिकल पाइप लिया, सेम प्रेशर डिफरेंस है. यस यस सर. तो मेरे मैनोमीटर की रीडिंग में क्या डिफरेंस है मैनोमीटर की रीडिंग में, अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर रहा हूँ? So 1 minute, sir. Think. Okay, you can just take your copy and pen and just solve it. Yes, sir.
सर थोड़ा कंफ्यूजन हो सर, मतलब इतना अभी हो नहीं पाता है, थोड़ा confusion। Okay. What is the application of Bernoulli equation? The application of Bernoulli, सर बेसिकली एप्लीकेशन है सर, हम फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में बर्नौली इक्वेशन जैसे वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में हम यूज करते हैं। तो What is the value of CD in the case of orifice meter and venturi meter? सर इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर इट इज अराउंड 0.96 to 0.98, while in case of orifice meter it is around 0.68 to 0.7. Why it is so less in the case of orifice meter? So in case of orifice meter, basically there is losses, means eddies are formed more in case of orifice meter, due to which there are losses. So coefficient of discharge is very less. What do you mean vena contractor? सर वेन ऑफ कंट्रैक्टर सर बेसिकली पॉइंट ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जैसे सर ऑरिफिस मीटर में हम जो ऑरिफिस होता है सर, उस पे हमें मिनिमम एरिया नहीं मिलता, वो फ्लो की इनर्शिया की वजह से फ्लो आगे बढ़ता जाता है, और मिनिमम एरिया में बिना कॉन्ट्रैक्टा पे मिलता है सर, वो होता है सर मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जो फ्लो के अराउंड मिलता है, वो होता है सर। What do you mean by HGL and TEL in the case of a pump and turbine? सर HGL and TL, sir, hydraulic gradient line. HGL stands for sir hydraulic gradient line. It is basically the line formed by joining the piezometric head P by rho g plus Z. While in case of TEL, it is total energy line. It is formed by joining the total energy, means uh, So how it is going to be made in the case of a pump and turbine? सब पंप में बेसिकली हम एनर्जी इनपुट देंगे, Hmm. तो जिसके कारण सर टीईएल जैसे जो कि राइज कर जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे, मतलब अगर हम टीएल पे एनर्जी इनपुट देते हैं, वही अगर टरबाइन हमारी एनर्जी ले लेगी, मतलब एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगी, तो वहां पे टीईएल डाउनफॉल, मतलब उसका डाउनफॉल होगा सर, बेसिकली यही डिफरेंस आएगा सर। Okay. How can you define the pump? What do you mean by a pump? So a pump is basically a work consuming device which is used to raise the pressure, the pressure of a fluid. Basically the fluid is liquid, not gases. Pump में सर ये होता है सर। Okay, okay. जैसे कि मैं अगर मार्केट में कोई पंप खरीदने चाहता हूँ, Yes. खरीदने जाता हूँ, तो हाउ कैन आई जस्ट से दैट कि मुझे क्या क्या टर्म्स बताने पड़ेंगे कि मुझे पंप में रिक्वायरमेंट? सर बेसिक अगर हम जाएं तो सर कितना वो हेड डेवलप कर सकता है, ये अब कुछ मतलब तो वो मेन हेड यही कैसे होता है डिफाइन करोगे, क्या होता है वो हेड? सर। हेड होता है जैसे पंप के केस में, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में मैनोमेट्रिक हेड की बात करते हैं, कि जो हेड वो हमारा पंप बेसिकली जिस हेड के अगेंस्ट वो काम करना चाहता है, काम करना पड़ेगा उसको, वो होता है मैनोमेट्रिक हेड मैनोमेट्रिक सर। हेड क्या क्या कंबाइन करता है? सर सर सक्शन हेड होता है, सक्शन, हम्म, डिलीवरी और लॉसेस हम्म, के कंबाइन कर दें तो सर होता है। ओके ओके। व्हाट डू मीन बाय प्राइमिंग इन द केस ऑफ पंप? सर प्राइमिंग इज बेसिकली सर हम पंप में मैनुअली वाटर फिल करते हैं, कि वो एयर अगर वो पंप ले लेता है तो उसको एयर को हटाने के लिए मीन्स हम वाटर मैनुअली फिल करते हैं, ताकि वो पंप डायरेक्टली वाटर पे मीन्स वर्क करे, ना कि एयर पे, क्योंकि अगर एयर पे वर्क करेगा तो उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, पावर कंज्यूम नहीं, मतलब जितना हेड नहीं डेवलप कर पाएगा, बेसिकली ये होता है। तो अगर अगर अपन चाहे एयर पे, तो एयर पे वर्क कर सकता है सर उतनी हेड नहीं डेवलप होगा सर, रोक और कोई इशू नहीं आएगा, बस हेड डेवलप नहीं होगा। वर्क बेसिकली सर, करेगा, बस चलेगा। सर वैसे तो सर पंप तो लिक्विड पे काम करता है, वही थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं करना चाहिए सर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? सर रो क्यू वी ओमेगा टू यू टू सर, मतलब एम डॉट वी ओमेगा टू यू टू। रो क्यू जी एच बोल सकते हैं ना मालूम है? हाँ रो क्यू जी बोल सकते हैं तो अगर रो ऑफ एयर कितनी होती है सर, 1.2 के अराउंड होती और है, वाटर की कितनी होती है? 1000 होती है सर, तो बहुत तो कम। अगर मैं यहाँ पे अगर दूंगा तो वो लॉसेस होगा ना, वो लॉसेस कहाँ पे जाएगा? हीट की फॉर्म में जाएगा। अच्छा और हीट क्या करेगा? वाइंडिंग को बर्न कर देगा, है ना? ओके सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द इन द केस ऑफ एयर। मैं कभी खाली पंप चलाते नहीं है, चलाएंगे अच्छा तो वो क्या होगा, वो हीट की फॉर्म में हीट एक्सट्रैक्ट का करेगा एंड देन जस्ट बर्न द वाइंडिंग्स, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एनपीएसएच? sir, NPSH stands for net positive suction head. Sir, basically, it is the difference between the
pressure head at the inlet of impeller minus the vapor pressure, मतलब PV, vapor pressure at that particular temperature head. Basically it is P1 by rho g minus PV by rho g. सर ये होता है सर. So, Prajwal, I will just give you the feedback now, है ना, क्योंकि स्नैप है अपना, तो बेसिकली थोड़ा सा आप जल्दी कर रहे हो चीजों को, हरी मतलब, अच्छा। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहे हो। इनिशियली आपने जैसे आपने उसको बताया कि आपने क्या नाम है उसका, तो पहले क्वेश्चंस मैंने पूछा था, उसमें जब आपने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर, है ना। अच्छा तो अगर एएससी में या कहीं भी आप जा रहे हो ना, तो अपने वर्ड्स को थोड़ा सा मिनिमाइज कर, ओके जिससे कि सर. और क्वेश्चंस फॉर्म ना हो, ओके सर. है ना कहीं इंसान जो उसकी नेगेटिव होता है ना, उसको बोल जाता है, और यस उनमें सर. फिर अटकना स्टार्ट हो जाता यस. है ना। तो बहुत ज्यादा चीजें अपने को बोलनी नहीं, जितना आपको बोला है आपको उसी में ही एक्सप्लेन करना, और मिनिमम वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन ओके. करना, ठीक है। जब तक उन्हें पूछना होगा, आगे पूछना होगा, दे विल आस्क यू, ओके श्योर, सर. दे नो कि वेयर द स्टूडेंट विल बी गोइंग टू बी स्टक, है ना। ओके. थोड़ा सा आपको यही करना है, और थोड़ा जल्दी नहीं, आराम आराम से बताना है चीजों को। क्या होता है, जल्दी चक्कर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कई बार हम यस. लोग चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अटक जाते हैं, तो फिर अपन घबरा जाते हैं कि यार मैं तो अटक गया, मुझे याद नहीं आ रहा, या मैं भूल यस. गया, है ना। तो वो चीज को आपने याद रखना है। जैसे मेटा सेंटर आपने बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्ड, है ना। ओके. हर चीज आपने उसमें एक्सप्लेन की जो भी आपको मेटा सेंटर से रिलेटेड पता थी, यस सर. है ना। तो बस वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना, बाकी ठीक है। देखो आपकी ऑलरेडी रैंक अच्छी है, यू आल्सो हैव अ गुड क्वालिफिकेशन आल्सो, यू आर जस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम द आईआईटी, सो दैट इज मेक्स सो मेनी प्लस पॉइंट्स, है ना। यस सर. तो ये आपके प्लस पॉइंट काफी ज्यादा है, तो आप इतना टेंशन नहीं लेना, अपने को रिलैक्स रहना है, और आराम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके. थैंक यू सो मच। सर एक